Have an interesting session that is related to your word power. Students, today we all will develop our words, and I promise you that if you will go through this lecture, we will learn almost more than 500 words in this session. So get ready to learn dynamic word power with us. Right, students? So shall we start? Before I should start anything, I want that you should tell me why English words are necessary for us. Why good vocabulary is necessary for all of us. What is the reason behind that? That we should know all the words in English rather than only in Hindi. Shall we start? So yes, please tell why vocabulary is necessary for you. Vocabulary is necessary for me for teaching language. Vocabulary is necessary for me because I do job. Vocabulary is necessary for me because that I want to be a successful businessman. Vocabulary is necessary for me because I want to be a successful scientist. Vocabulary is necessary for me to go interview. Vocabulary is necessary for if I have vocabulary, then I will speak English fluently. It is necessary for me because I am improve my writing skill and typing skill. My vocabulary increase for English and English. Vocabulary is necessary for me because I learn to English to speaking to successful in life. Vocabulary necessary. Why it is necessary? Necessary for successful life. So students, look, come back on our topic. Today we have an interesting session. This session is quite interesting because word plays an important role in your personality. Right, all of you? Yes. So students, today I have some session for you. I have notes for you. I have this board session for you. And I'll be giving you some exercises also. So prior to that, I want something with you. I want to play a game with you. मैं आप सबके साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ. आप सब रेडी हो मेरे साथ खेलने के लिए? Right. हम में से कितने लोगों को लगता है कि vocabulary words hard होते हैं याद करने? Okay. आपको लगता है वर्ड याद करने हार्ड होते हैं? ठीक है, तो आज हम आपको एक इजी वे बताते हैं, द इजी मैनर विच विल रियली गिव यू एन इंप्रेशन कि आप इतनी जल्दी इतने सारे वर्ड्स कैसे याद कर लिए. लेट अस कम बैक. सी स्टूडेंट्स, आई हैव रोट हियर सर्टेन वर्ड्स. ऑल ऑफ यू आर विजिबल टू इट? हम सबको दिख रहे हैं वर्ड्स? Yes, sir. So come back. The first word which I am giving you is acme. Is it visible to all of you? Yes, sir. Students, acme का मीनिंग होता है zenith, peak, right? Up. The most peak part I can say, चरम सीमा, the peak. अब हमें वर्ड याद करना है, right? और हम कहते हैं सर ये वर्ड रिकॉल कैसे करें? तो बड़ा इजी है. आप यहां पर एक छोटा सा लैक्मे लिख दो. क्या लिखोगे? लैक्मे. और लैक्मे हमारी ब्यूटी को क्या करता है? बढ़ाता है. तो वो बढ़ाने वाली चीज को ही एक्मे कहते हैं. बिल्कुल चरम सीमा. तो द थिंग इज लैक्मे इंक्रीजेस आवर ब्यूटी. और हमें कहां तक ले जाता है? एक्मे तक. एक्मे इज zenith, peak. Is it okay? Coming on the next word, that is acrimonious. Acri word से हमें कुछ याद आ रहा है. angry man, angry, angry man. तो अगर हम angry man याद कर लें तो ऑब्वियस है कि जो हमसे एंग्री होगा वो क्या वर्ड यूज करेगा? कटु, उब, चुभने वाली बात कहना. एंड दीज आर रिलेटेड टू द वर्ड्स दैट इज नोन एज acrimonious. इसे ही हम क्या बोलते हैं? acrimonious. Is it clear to all of you? Coming on the next word, that is a bat. अब आप कहेंगे सर ये वर्ड हम याद कैसे करें? हम सुन तो रहे आपसे. तो स्टूडेंट आपको इसके अंदर एक वर्ड दिख रहा होगा, bat, right? तो इसका मीनिंग है उकसाना. किसी को उकसाना, मगर बुरे कार्य के लिए. तो यहां पर हमें वर्ड मिल रहा है बैटिंग. बैटिंग वर्ड समझते हो स्टूडेंट्स आप? क्या होता है? क्रिकेट के अंदर मोस्टली प्लेयर्स पकड़े जाते हैं इन चीजों की वजह से. तो बुरे काम में किसी को उकसाने के लिए क्या कहेंगे उसे? अ बैट. इज इट ओके स्टूडेंट्स? बैटिंग वर्ड याद रहेगा आपको. कमिंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, एक्वेंट. इतना बड़ा वर्ड हमारे छोटे बच्चों को कैसे याद रहेगा? सो देयर इज अ प्रॉपर वे टू लर्न दिस वर्ड इज, आप लोगों ने हीरोइन सुनी होगी हेमा मालिनी, राइट? एक्वा प्योरीफायर में एड में आती है, राइट? तो हम यहां पर एक वर्ड यूज करेंगे, हेमा मालिनी हमें एक्वा प्योरीफायर से परिचित करवाती है. हेमा मालिनी
हमें एक्वा प्योरीफायर से क्या करवाती है? परिचित करवाना ही एक्वेंट होता है। इसका मीनिंग आप लिख सकते हो, टू इंट्रोड्यूस। इज इट ओके? टू इंट्रोड्यूस समथिंग और समवन इज नोन एज एक्वेंट। तो हेमा मालिनी और एक्वागार्ड, इन चीजों को आप याद रख लेना, आप कभी भी एक्वेंट वर्ड नहीं भूलोगे। कैन वी गो इन द नेक्स्ट वर्ड फॉर आवर प्लेइंग? नेक्स्ट वर्ड इज हैराम, हैरेंग। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? हैरेंग दिख रहा है हमें? हैरेंग वर्ड का मीनिंग है स्टूडेंट्स, बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ऑल दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू हैरेंग। तो जो स्पीकर बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोलता है, तो हम यहां पर एक वर्ड यूज करते हैं, हर एंगल से बोलने वाला। किस एंगल से बोलने वाला? बोलिए मेरे साथ। हर एंगल से बोलने वाला क्या कहलाएगा? हैरान। तो हम बेस्ट एग्जांपल हमारे पीएम मोदी जी को दे सकते हैं कि अवर मोदी जी इज ए हैरान पर्सनालिटी, राइट? ही इज अ वेरी डोमिनेंट स्पीकर, सो दिस इज नोन एज हैरान। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? हैरान वर्ड इज क्लियर? क्या मीनिंग है इसका? बड़ा चढ़ाकर, राइट? डोमिनेंट वे ऑफ स्पीकिंग। नेक्स्ट वर्ड इज जियोपार्ड। स्टूडेंट इसका मीनिंग हार्मफुल होता है, हम सब लिख सकते हैं, पर आप कहेंगे सर हमें ये याद कैसे हो, हम इस वर्ड को कैसे रिकॉल रख पाए आपकी बात को कि हमें जियोपार्ड वर्ड याद रहे? तो इसके लिए आपको एक वर्ड बताते हैं। इन दिनों जियो की सिम चल रही है, तो हम बोल सकते हैं जियो की सिम पर डे। पर का क्या बन गया? पर डे। जियो की सिम पर डे जो जो यूज कर रहे हैं बड़ा हार्मफुल है उनके लिए, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाई करनी चाहिए, मगर वो जियो सिम को यूज करके क्या कर रहे हैं? वो फेसबुक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और वेरियस अदर थिंग्स दे आर डूइंग। सो मिसयूजिंग इंटरनेट एंड प्लेइंग विद देयर करियर। तो जियोपार्ड का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? हार्मफुल। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? और इसको रिकॉल कैसे करना है? हमें कौन सा याद रखना है? जियो की सिम पर डे इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। कमिंग ऑन द नेक्स्ट थिंग, पेट्रीफाई। क्या वर्ड है? पेट्रीफाई, PETRIFY। यहां पर आप वर्ड देखो पैट। कभी कभी पैट को देख के हम हक्के बक्के नहीं रह जाते, शॉक नहीं हो जाते, हमें ये लगता है कि भाई हम हक्के बक्के रह गए, शॉक हो गए हम। व्हाट इट स्टूडेंट्स? तो पैट को देखकर हम हक्के बक्के रह गए, हम डर गए। पैट क्या होता है? डॉग हो गई, ये चीज क्या है? पैट एनिमल्स है। तो अचानक हमारे सामने आ गया और हम हक्के बक्के रह गए। तो हक्का बक्का रहना, अनमूवेबल, शॉक्ड, क्या कहलाता है? पेट्रीफाई। तो जब आप अनमूवेबल, शॉक्ड वर्ड याद करो, उस दौरान आप एक वर्ड याद कर लेना, पैट को देखकर क्या हो गया? आप हक्के बक्के रह गए, आप शॉक हो गए पैट को देख के, अरे इनके घर में इतना बड़ा डॉग है, तो आप घबरा गए, तो पेट्रीफाई हो गए, अनमूवेबल या फिर शॉक्ड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कमिंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड ऑफ आवर गेम, एपेलेशन। इसके लिए इसका मीनिंग पहले आपको बताते हैं हम। इसका मीनिंग है टाइटल। क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? टाइटल। इज इट ओके? या फिर किसी को नेम, किसी को उपाधि दी जाती है तो ये टाइटल। एग्जांपल दें आपको, महात्मा गांधी को टाइटल क्या मिला हुआ है? फादर ऑफ द नेशन। और चंडीगढ़ को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ रोजेस। बेंगलोर को क्या कहते हैं? जिसे बेंगलुरु कहने लगे शायद आजकल, राइट? तो उसको क्या कहते हैं? सिलिकॉन सिटी, आई थिंक सो, राइट? तो सेम हियर, एपिलेशन का मतलब है टाइटल और नेम। पर आप कहेंगे सर इसको याद कैसे रखें हम क्या ऐसा करें कि हमें ये वर्ड याद हो जाए? तो आपको एक इजी वे बताता हूं। एपिलेशन से आप वर्ड याद करो, एप्लीकेशन। अपनी कॉपी में क्या वर्ड यूज लिखोगे? और लिख लो, एप्लीकेशन के लिए हमें किसी नेम या टाइटल की जरूरत होती है। क्या बोलोगे? बोलिए मेरे साथ। एप्लीकेशन के लिए किसी नेम या टाइटल की जरूरत होती है, तो एप्लीकेशन वर्ड आ गया। इसका मतलब क्या है? टाइटल या फिर नेम। इज इट ओके? एक बड़ा सिंपल सा वर्ड है अबोर। अबोर का मतलब होता है स्टूडेंट हेट। वेरी गुड। हेट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? नफरत करना। इज इट ओके? अब ये वर्ड अगर आपसे याद ना हो तो आप अपने आसपास के एनवायरमेंट में देख लो, गंगानगर, हनुमानगढ़, साधु शहर, और हमारे पास यहां पर एक प्लेस है जिसको हम क्या बोलते हैं पंजाब साइड? अबोहर। तो इस वर्ड को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली ये वर्ड याद है। इसका मीनिंग डिटेस्ट भी होता है, लॉथ भी होता है। हम अपनी फर्दर क्लासेस के अंदर करेंगे। कमिंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, एक्लिविटी। क्या वर्ड है स्टूडेंट्स? एक्लिविटी। एक्लिविटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स चढ़ाई। क्या मीनिंग है? चढ़ाई। अच्छा, इसका एक ऑपोजिट भी होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेसेज। क्या बोलेंगे? BRASSAGE। BRASSAGE।
पैसेज का मीनिंग क्या है? उतराई। तो हम वैष्णो देवी पे ऊपर चढ़ते हैं तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? एक्लिविटी। और उतराई कर रहे तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? पैसेज। अब आप कहेंगे सर ये मैं वर्ड याद कैसे करूं? व्हाट इज द टेक्निक ऑफ लर्निंग दिस वर्ड? तो एक बहुत अच्छा वे है स्टूडेंट्स, आप इसके अंदर ये वर्ड याद रखो सिर्फ, ACCL। क्या बनेगा? अक्कल। अक्कल को हमेशा बढ़ाओगे या कम करोगे? बढ़ाओगे। तो आप ऐसे याद करो, अक्कल हमेशा क्या करनी है? रेस करनी है। तो आपको एक्टिविटी कभी नहीं भूलोगे आप। अक्कल को क्या करना है? हमेशा रेस करना है। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? कमिंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, क्लैमर। क्लैमर वर्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट शोर शराबा। तो आप जोड़ कर लो सबसे पहले कि इसका मीनिंग क्या है? शोर शराबा, शोरगुल, चिल्लाहट, क्या कहलाता है? क्लैमर। पर अगर आपको इसे याद करना है तो आपको बहुत इजी वे बताता हूं। हीरोइंस, एक्ट्रेसेस, क्लैमर फॉर ग्लैमर। वो शोर मचाती है किस चीज के लिए? ग्लैमर के लिए। तो आप अब कभी नहीं भूलोगे ग्लैमर और क्लैमर। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? इजी टू ऑल ऑफ यू? तो आप इजी वर्ड याद करो। क्लैमर का मीनिंग है क्या स्टूडेंट्स? शोरगुल, राइट? क्या मीनिंग है? शोरगुल। शुड वी मूव फर्दर? कमिंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, एक्यूमैन। क्या वर्ड है स्टूडेंट्स? एक्यूमैन। एक्यूमैन रिलेटेड वर्ड किससे हो रहा है? एक्यूमैन इटसेल्फ चूज कर रहा है वर्ड एक्यूरेट। क्या वर्ड है? यहां से देखो, एक्यूरेट। अब आप कहोगे सर इसको मैं याद कैसे रखूं, रिकॉल कैसे रखूं? तो आपको मैन दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो आप इसको इंटेलिजेंट बोल दो। इंटेलिजेंट मैन आपको याद रह जाए तो आप ऑटोमेटिकली इसे एक्यूरेट बोल लोगे, राइट? एक्यूरेट मैन। तो आप एक्यूरेट वर्ड इजीली याद हो जाएगा। एक्यूमैन का मीनिंग क्या है? एक्यूरेट। क्लियर स्टूडेंट्स? एक्यूरेट लिख लोगे आप लोग। आगे बढ़े हम। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडेज। क्या वर्ड है स्टूडेंट? एडेज। ADAGE। क्या वर्ड है? एडेज। एडेज का मीनिंग स्टूडेंट्स मीनिंग होता है पुरानी कहावत। क्या मीनिंग होता है? पुरानी कहावत, ओल्ड सेइंग, प्रोवर्ब। क्या वर्ड है? प्रोवर्ब, कहावत, ओल्ड सेइंग। अच्छा, ओल्ड से आपको एक बात याद आ गई होगी, ओल्ड पीपल। आया याद? क्या वर्ड है? ओल्ड पीपल। तो एडेज से हम ओल्ड बात ले सकते हैं और ओल्ड पर्सन हमेशा क्या बताएंगे? पुरानी कहावत बताएंगे। तो हम एडेज को ओल्ड एज से रिलेट कर सकते हैं और इजीली इस वर्ड को रिकॉल कर सकते हैं कि एडेज, ओल्ड एज, पुरानी कहावत, पुरानी सेइंग और प्रोवर्ब। प्रोवर्ब हम यूज करते हैं। नेक्स्ट कम्स एंटेल। एंटेल का मतलब स्टूडेंट्स होता है नीड। आप लिखिए रिक्वायरमेंट और नीड। अब आप कहेंगे सर हमें ये वर्ड याद कैसे करें? व्हाट इज द मैनर ऑफ लर्निंग दिस वर्ड? दिस गुड वे टू लर्न दिस वर्ड इज डॉग की टेल। डॉग के लिए उसकी टेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्री करते हो मेरे साथ? तो जब आपको टेल वर्ड दिखे तो आपको क्या दिखना चाहिए आईज में? डॉग। और डॉग की टेल डॉग के लिए बहुत जरूरी होती है। उसी तरीके से एंटेल का मीनिंग क्या है? जरूरत, नीड, रिक्वायर। याद हो गया इसमें वर्ड? आगे बढ़े। देयर इज वन वर्ड विकेडनेस। विकेडनेस का मीनिंग स्टूडेंट्स होता है कि कहीं पर एविल डूइंग, मोरली एविल डूइंग, बुरा करना किसी के लिए। तो इसको हम रिकॉल करने के लिए एक बहुत अच्छा वे है हमारे पास। W से वीक पर्सन बनता है। एग्री करते हो? वीक पर्सन। तो वीक पर्सन के ऊपर किया हुआ जुल्म। तो हमेशा विकेडनेस क्या है? हम जब वीक पर्सन को याद करेंगे तो हम समझ जाएंगे एविल डूइंग विकेडनेस कहलाती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज क्विबल। क्विबल का स्टूडेंट मीनिंग होता है ट्रिफल मैटर पे लड़ना, छोटे छोटी बातों पे लड़ना। क्लियर? छोटी छोटी बातों पे क्या करना? झगड़ना। क्या कहलाता है? क्विबल। क्विबल से हम वर्ड लेते हैं केबल। क्या वर्ड लेंगे? केबल। तो केबल वाले लोग जब आपके घर पे आते हैं तो वो छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाते हैं। तो छोटी छोटी बातों के लिए लड़ने के लिए हम क्या बोलेंगे? क्विबल। ट्रिफल मैटर्स के लिए जो लड़ता है। हाँ, अगर हम कोई बात बोलते हैं कि यार ये लोग वैसे लड़ रहे हैं तो बहुत वे है इसको बोलने के, मगर फिलहाल तो आप इतना याद रखो क्विबल का मतलब ट्रिफल मैटर्स के ऊपर झगड़ना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? शैल वी मूव फर्दर? देयर इज वन बीमोन। बीमोन का मीनिंग होता है स्टूडेंट डिसप्लेजर। डिसप्लेजर, दुख मनाना, दुखी होना। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? बीमोन।
तो मैं अगर इसको एग्जांपल में लूं, और मौन का मीनिंग आपने सुना है? मौन, अगर मैं सिंपल हिंदी में बोलूं मौन रहो 2 मिनट के लिए, ऐसा होता है ना मौन। तो आपको एक एग्जांपल देता हूं कि वेन एवर माई वाइफ बीमोन्स, कभी भी वो दुखी हो जाती है तो मैं क्या करता हूं? मौन हो जाता हूं। करेक्ट? तो बीमोन से आपको क्या वर्ड याद रखना है? मौन। तो आप कभी नहीं बोलोगे कि बीमोन का मतलब क्या है? डिसप्लेजर, दुखी, राइट? सोरो इज नोन एज बीमोन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कमिंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, रिट्रीट। क्या वर्ड है स्टूडेंट्स? रिट्रीट। रिट्रीट का मीनिंग स्टूडेंट्स होता है पीछे हटना। अब आप में से कोई बच्चा बोलेगा कि सर इस वर्ड को रिकॉल करने का वे क्या है, बेस्ट वे क्या है इस वर्ड को रिकॉल करने का? तो आप लोगों ने ट्रीट तो सुना होगा, मेनी टाइम्स वी आर थ्रोइंग अ पार्टी, है ना? पार्टी देने को क्या कहते हैं? थ्रो पार्टी। एग्री करते हो? तो जब कभी कोई आपसे ट्रीट मांगता है तो आप क्या करते हो? आप पीछे हट जाते हो। तो आप किसी के लिए कह सकते हो यार ये जो व्यक्ति है ना, इससे जब ट्रीट मांगेंगे तो ये रिट्रीट हो जाएगा। मतलब कि जब आप इससे बोलोगे यार कुछ पार्टी दे, तो ये क्या करेगा? पीछे हट जाएगा। दिस इज व्हाट टू बी नोन एज रिट्रीट, पीछे हटना। इज इट ओके स्टूडेंट्स? कमिंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज एजिलिटी। Agility is quite interesting word, and agile. This word, students, is related to the aged persons. So we can say aged persons related. We have already done so many words. It's quite a synonym of the same. Coming on the word that is surreal. Surreal is word that is dream-like. तो dream-like word जो होता है स्टूडेंट्स, उसका एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं ही मैन। कभी मिला आपसे ही मैन? कभी देखा आपने ईमेन को असली में? सुपरमैन कभी देखा आपने असली में? तो ये ड्रीम है, इमेजिनरी है, फैंटेसी है। तो ये क्या है? surreal। तो surreal को आप याद करने के लिए आप बहुत अच्छा वे है, आप याद रखो अनरियल। तो आपको surreal याद रहेगा, which is not real is known as surreal। Is it easy students? Coming on the next word, viability। viability का मतलब स्टूडेंट्स होता है ताकत, पावर, एनर्जी। तो जो लोग एनर्जेटिक है उनमें क्या है? वायबिलिटी है, स्फूर्ति है। तो आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हो अपनी लाइफ में। कमिंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज रिबफ। रिबफ का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी ऑफर को मना करना। क्या मीनिंग है? किसी ऑफर को मना करना, क्लियर? रिजेक्ट करना। तो आप कहोगे सर इसको रिकॉल करने का वे क्या है? तो इसको रिकॉल करने का एक बहुत अच्छा वे है, आपके दोस्त ने आपकी बफेलो के ऑफर को मना कर दिया। रिबफ। बफ से क्या याद रखोगे आप? बफेलो। आपकी बफेलो ने उसको क्या ऑफर किया? उसको ऑफर किया भाई मुझसे मैरी कर ले, शादी कर ले मुझसे। तो बताइए आपके दोस्त ने हाँ बोला कि ना बोला? ऑब्वियसली ना बोला। तो रिबफ का वर्ड आप याद कर सकते हो कि मना करना। बफेलो के ऑर्डर को या बफेलो की रिक्वेस्ट को क्या किया उसने? रिजेक्ट कर दिया। तो दिस इज व्हाट टू बी नोन एज रिबफ। इज इट क्लियर? कमिंग ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट, स्प्राउट। आप में से कितने बच्चे ऐसे जो स्प्राउट खाते हैं? वेरी गुड। आप लोग मॉर्निंग्स में ही खाते होंगे स्टूडेंट्स? वेरी गुड। तो स्प्राउट का जो मीनिंग है स्टूडेंट्स वो होता है पार्ट, ताकत। तो मैं अगर ऐसे बोलूं कि स्प्राउट खाने से हमारे अंदर स्प्राउटनेस आती है, तो बताओ क्या गलत है इसमें? मेरे साथ बोलिए। स्प्राउट खाने के कारण हमारे अंदर स्प्राउट रहती है। स्प्राउट का मतलब क्या है? पार, ताकत। और वो स्प्राउट नाउन क्या है? वो स्प्राउट नाउन है खाने वाले स्प्राउट जो हम यूजली मॉर्निंग्स में खाते हैं। तो आप कोरिलेट कर सकते हो कि स्प्राउट खाने से बॉडी में स्प्राउटनेस रहती है। तो आपको ध्यान रहेगा कि स्प्राउट का मीनिंग क्या है? इंप्रूव पावर, अपर पार्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कंसेंसस। कंसेंसस का आप हिंदी में मीनिंग लिखिए सर्व सहमति। क्या वर्ड लिखोगे? सर्व सहमति। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या वर्ड है? सर्व, सबकी सहमति। अब आपको सर इसको याद करने का क्या वे है? तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा स्टूडेंट्स, सेंसस। सेंसस, सेंसस। सेंसस वर्ड स्टूडेंट्स होता है, जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा गणना जिसको हम बोलते हैं, CENSUS, सेंसस। क्लियर? गणना। गणना हमारी लास्ट टाइम कब हुई थी? 2011। वेरी गुड। 2011
जब 2011 में हमारी गणना हुई थी, हमारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये कहा गया 2200 करोड़ रुपए सेंसस के अंदर लगे थे। कितने रुपए लगे थे उन गणना में? 2200 करोड़, 2200 करोड़ रुपीज वर इन्वेस्टेड इन द सेंसस। अब आप कहते हो सर इसको याद कैसे करें? आपकी बात तो हम समझ गए हैं, तो इसको रिकॉल करने का बहुत अच्छा तरीका है। सेंसस के लिए हमें कंसेंसस की जरूरत होती है भाई, गणना करने के लिए हमें सबकी सहमति की जरूरत होती है। तो आप सेंसस को कंसेंसस से रिलेट कर दो, आप कभी भी ये वर्ड नहीं भूलोगे दैट सेंसस इज रिलेटेड टू कंसेंसस। इज इट इजी और हार्ड? वेरी गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का वर्ड होता है स्टूडेंट थोड़ा शक करना। लिख लिया आप लोगों ने? अब अपने इसको समझते हैं। आप ट्रेन में जा रहे हैं, अचानक आपके चोट लग गई, एक व्यक्ति ने ट्रेन में आपको एंटीसेप्टिक दे दिया और बोला भैया इसको लगा लो। आपने उस व्यक्ति को किस नजरों से देखा? शक की नजरों से। अनजान व्यक्ति है, हो सकता है उसने अच्छा किया हो सकता है उसने बुरा भी किया हो, पता नहीं क्या करने वाला है। तो आपने क्या किया? उसे शक की नजर से देखा। आपने उसने किया क्या था? एक एंटीसेप्टिक दिया था, ट्रेन में दिया था। तो जब आप एंटीसेप्टिक और ट्रेन याद करोगे तो आपको कहीं ना कहीं स्केप्टिसिज्म याद आ जाएगा और आप कभी नहीं बोलोगे कि इसका मीनिंग क्या है? शक करना। इज इट ओके स्टूडेंट्स? कमिंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज कंसाइंस। तो इसको कॉन्शियस बोलते हैं। कॉन्शियसनेस वर्ड आपने सुना होगा, CONSCIOUS। कॉन्शियसनेस जो वर्ड है, इसकी प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम रहती है। तो कॉन्शियस का मतलब है अंतरात्मा। क्या मीनिंग है? अंतरात्मा। तो हम ऐसा कह सकते हैं, जो लोग कॉन्शियस होते हैं वो कॉन्शियसनेस के साथ वर्क करते हैं। जो लोग कॉन्शियस होते हैं वो कॉन्शियस के साथ काम करते हैं। दोनों की प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होती है। तो हम लोग इस कॉन्शियसनेस को कॉन्शियस से रिलेट कर सकते हैं। इज इट ओके? मीनिंग क्या है इसका? अंतर आत्मा। इज इट ओके स्टूडेंट्स? क्या हम आगे बढ़े? कमिंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है करेज। पहले आप लिख लो हिंदी में साहस। इजी वर्ड है। आप कहते हो सर हमने साहस तो लिख लिया, बट स्टिल वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम दैट हाउ टू लर्न दिस वर्ड। हम क्या ऐसा करें जो ये वर्ड हमें याद हो जाए, कभी ना भूले हम इस वर्ड को। तो दिस वर्ड इज ऑडेसिटी स्टूडेंट्स। ऑडेसिटी इज वेरी डायनेमिक वर्ड, पर इसको रिकॉल कैसे करें, याद कैसे करें? तो एक बहुत अच्छा तरीका है। आइए मेरे साथ, लुक अप हियर। ऑडी कार आप सबने सुनी होगी। ऑडी कार, ऑडी कार एक्चुअली साइड्स में थोड़ी सी बड़ी टाइप होती है, थोड़ा सा एरिया ज्यादा कवर करती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, ऑडी कार को सिटी में चलाना साहस का कार्य है। तो ऑडेसिटी, ऑडी को कहां चलाना? सिटी में। करेजियस काम है भाई, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आपको याद हो गया मेरे ख्याल से वर्ड, दैट इज ऑडेसिटी मीन्स साहसिक कार्य और साहस, करेज, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, हाइपोक्रेसी। क्या वर्ड है? हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी का मतलब होता है स्टूडेंट्स आडंबर। लिख लो पहले, क्या वर्ड है? आडंबर। हम सबने आडंबर लिख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको याद करना है इस वर्ड को, तो आप सब हिप्पोपोटामस को याद कीजिए जरा। कितना मोटा होता है हिप्पोपोटामस? तो आप ऐसा सोच लो, हिप्पोपोटामस रखने का क्रेज क्या कहलाता है? हिपोक्रेसी। हिप्पोपोटामस रखने का क्रेज एक आडंबर से बढ़ के नहीं है भाई। कोई अगर मुझे आप में से बोले कि सर हमारे घर में ना हिप्पोपोटामस है और हम पालते हैं, तो मैं डॉग कैट तो मान सकता हूं, मगर हिप्पोपोटामस कभी नहीं मानूंगा। तो ये एक आडंबर लगेगा, राइट? तो दिस इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू हिपोक्रेसी। तो आपको इजी वर्ड याद हो चुका है। कमिंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, ऑर्थोडॉक्सी। सबसे पहले आप इसका मीनिंग लिखिए। ऑर्थोडॉक्सी का मीनिंग होता है रूढ़िवादिता। क्या मीनिंग है? रूढ़िवादिता, धर्म के प्रति रूढ़िवादिता। भाई हमने देखा होगा विलेजेस वगैरह में जो लेडीज है उनको, जो स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट्स उनको ज्यादा पढ़ने नहीं देते। मैरिड वुमेन से उनको पल्लू में रहो, है ना, बाहर मत निकलो, पढ़ाई मत करो, आगे मत बढ़ो। मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सुपरस्टिशन चल रहा है, वही मोन। तो हम जब इस वर्ड को याद करने निकलते हैं, तो देयर इज एन इजी मेथड टू लर्न दिस वर्ड। एक बहुत अच्छा मेथड है उसको याद करने का। वो मेथड हम देखते हैं क्या है। वो मेथड है स्टूडेंट्स, ऑर्थो की प्रॉब्लम किसको होती है? हड्डियों की प्रॉब्लम किसको होती है?
और बुजुर्गों का माइंड जो होता है नैरो होता है कि ब्रॉड होता है? मैक्सिमम टाइम नैरो होगा, ज्यादातर आप विलेजेस में देखो अलग, तो वो हमेशा क्या बातें करेंगे? ऑर्थोडॉक्सी थिंग्स। तो हमें वर्ड मिल गया कि ऑर्थो के ग्रसित लोग ज्यादातर कौन सी बातें करेंगे? ऑर्थोडॉक्सी वाली वर्डिंग। तो हमेशा हम कौन सी बातों को याद करना है हमें? ऑर्थो मीन्स ओल्ड पर्सन। तो कौन सी बातें करेंगे? वो रूढ़िवादिता वाली बातें करेंगे। एग्री करोगे स्टूडेंट्स? कैन यू मूव फर्दर? कमिंग टू नेक्स्ट वर्ड, एग्जैगरेशन। क्या वर्ड है? एग्जैगरेशन। एग्जैगरेशन का मीनिंग होता है बढ़ा चढ़ाकर। सबसे पहले आप नोट कर लो कि इसका मीनिंग है, क्या मीनिंग है इसका? बढ़ा चढ़ाकर। यहां तक मिल गई है हम लोगों ने। अब हम समझते हैं इस वर्ड को याद कैसे करना है। तो आप सिर्फ एक छोटा सा वर्ड याद रखो, वो वर्ड है आज की जनरेशन। क्या वर्ड याद रखना है आपको? आज की जनरेशन। और आज की जनरेशन हमेशा क्या करती है? एग्जैगरेशन होकर बातों को बताती है, एग्जैगरेटेड होकर बातों को बताती है, बढ़ा चढ़ाकर बताती है। कुछ भी वो होता है, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आज की जनरेशन अगर आपको वर्ड याद रह जाए तो एग्जैगरेशन वर्ड याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इजी रहेगा। आज की जनरेशन एग्जैगरेशन वे में कोई भी बात बताती है। एग्जैगरेशन का मीनिंग होता है बढ़ा चढ़ाकर, बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना। क्लियर स्टूडेंट्स? याद हो गया हमें वर्ड? शैल वी मूव द फर्दर वर्ड? प्रिज्यूमेबल। प्रिज्यूमेबल का आप मीनिंग लिख सकते हो पहले, एज्यूम करना, एज्यूम करना। मगर अगर मैं आपको याद करवाऊं ये वर्ड, तो आप लोग एक बार मेरे साथ वर्ड याद कीजिए। परफ्यूम कौन सा है ये? प्लीज प्रिज्यूम करके बताइए, कौन सा परफ्यूम है मेरे पास? प्लीज प्रिज्यूम करके बताइए। तो आप समझ चुके होंगे मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से कि मेरे पास कौन सा परफ्यूम है, एज्यूम करके बताइए। तो इज इट ओके फॉर ऑल ऑफ यू? आपको वर्ड याद हो गया? प्रिज्यूमेबल मीन्स एज्यूम। इज इट ओके? कमिंग ऑन द नेक्स्ट वे, डिसमे। डिसमे का मीनिंग होता है स्टूडेंट सैड। क्या मीनिंग होता है? सैड। अब आप कहेंगे सर हमें ना ये डिसमे याद नहीं रहेगा, आज आप बता रहे हो तो ठीक है, हमें तो सैड ही याद रहेगा। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि यहां से जाने के बाद आपको डिसमे वर्ड हमेशा याद रहेगा। लेट अस सी। डिसमे को हम हिंदी में पढ़ेंगे डिसमे। मई का महीना, किसका महीना? मई का। और मई के महीने में क्या आता है? रिजल्ट आता है। और बच्चे क्या हो जाते हैं? थोड़े से दुखी हो जाते हैं। तो आप कभी भी नहीं भूलोगे दिस में मतलब सैडनेस, राइट? क्योंकि दिस में मे का रिजल्ट हमेशा थोड़ा सा बच्चों को परेशान कर देता है। तो मीनिंग सैडनेस। कमिंग ऑन मोर इंपोर्टेंट वर्ड, दैट इज इनएप्ट। इनएप्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स अनस्किल्ड। क्या मीनिंग है? अनस्किल्ड, इनएप्ट, नॉट कैपेबल इनफ। अब आपको किस तरह से याद कैसे करना है? तो इनएप्ट से मैं आप लोगों के साथ एक वर्ड बोलूंगा, उसके बाद आप कभी भी इस वर्ड को नहीं भूलोगे। लेट अस सी। जिनसे कोई काम नहीं निपटता वो इनएप्ट कहलाते हैं। क्या बोला मैंने? जिनसे कोई काम नहीं निपटता। तो आपको निपटना वर्ड याद आ गया, तो इनएप्ट वर्ड आप इजीली याद कर सकते हो। इज इट ओके स्टूडेंट्स? कमिंग ऑन द फर्दर पार्ट, दैट इज एंग्विश। क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? एंग्विश। ये वर्ड भी अच्छा है स्टूडेंट्स, बट इट इज रिलेटेड टू योर एंगर। तो एंग्विश वर्ड हमें बहुत कुछ समझाएगा। लेट अस मूव फर्दर विद अवर न्यू वर्ड पार्ट एंड गो विद अ न्यू टेक्निक ऑफ लर्निंग वर्ड्स। विल गो विद स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड दैट इज, I will teach you different ways. Like as I told you, there are new words like acme. There are words, my last word like anguish. Next, my word I told about agility. Few words, as I told you, is related to. So it is related to old people. Anguish is related to anger. But अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि डियर का जो फेवरेट फ्रूट है वो अंगूर होते हैं। याद रहेंगे आपको? और जब डियर को अंगूर का गुच्छा नहीं मिला तो क्या होगा? वो अनहैप्पी हो जाएगा। तो आप मीनिंग रिकॉल कर रहे होंगे कि इट इज मीनिंग्स व्हाट? इट मीन्स अनहैप्पीनेस। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ कमिंग ऑन अवर न्यू वे। ये तो हमारा एक पर्टिकुलर गेम था आपके साथ, जो मेरे ख्याल से अब आप सारे वर्ड्स समझ चुके होंगे स्टूडेंट्स।
अब मैं आपके साथ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट करने जा रहा हूं. ऑल ऑफ यू गेट रेडी. स्टूडेंट्स लुक अप हियर प्लीज. दिस ब्रिंग ओवर हियर एवरीथिंग. वी आर गोइंग टू लर्न फ्यू वर्ड्स. मैं आपको 4-5 वर्ड लिखवाऊंगा, आप नोट करिए प्लीज. पहला लिखिए स्प्रिंट, SPRINT. दूसरा वर्ड लिखिए डिसीव, DECEIVE, DECEIVE, डिसीव. तीसरा लिखो इंक्रीज, चौथा लिखो कंसर्न. तो मैंने आपको 4 वर्ड बताए. तो कभी कभी हमें जब वर्ड लिस्ट याद करनी हो तो उसका एक ही प्रॉपर वे है, और वो प्रॉपर वे क्या है, हम एक्शनेबल अगर वर्ड को याद करें तो वो भी एक बेस्ट वे है. तो मैंने कुछ आपको बातें बताई है यहां पर कि हम एक सॉन्ग गाएंगे. सॉन्ग क्या, हल्का सा उसको मेलोडी थोड़ा सा बनाएंगे. तो मेरे साथ आप बोलो स्प्रिंट. स्प्रिंट कितनी बार बोलना है? स्प्रिंट. एक बार ऐसे एक्शन करो, स्प्रिंट. स्प्रिंट का मतलब होता है एकदम से तेज भागना, वेग से भागना. तो हम लोग कई बार जब जिम वगैरह में जाते हैं तो हम स्प्रिंट करते हैं, एकदम से हैवी एक्सरसाइज करते हैं. तो हम पहले क्या करते हैं, स्प्रिंट कर लेते हैं. उससे क्या हमारी बॉडी अच्छी वार्म अप हो जाती है. तो जब आप एक्शन करोगे तो आप ये वर्ड कभी नहीं बोलोगे मेरे साथ. क्या मीनिंग है? तेज वेग में भागना. क्या कहलाता है? स्प्रिंट. इजी. नेक्स्ट वर्ड एज आई टोल्ड यू डिसीव. डिसीव का मतलब होता है ठगना, बिट्रे करना किसी को. और इंक्रीज का मतलब हम समझते हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंसर्न. तो हम इस वर्ड को ऐसे कर सकते हैं, Sprint, don't deceive me please. Increase, I dare you because I am concerned. तो हमने उसको क्या किया, एक लय में बनाया और हमने उसको गा लिया. और उसको कितनी बार करना है हमें? 21 टाइम्स. हमने अगर 21 टाइम्स कर लिया तो हम कभी भी ये वर्ड नहीं भूलोगे. थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं. पहला वर्ड क्या था? स्प्रिंट. दूसरा वर्ड क्या था? डिसीव. मुझे बिट्रे मत करो भाई, बिट्रे धोखा मत दो, डिसीव मत करो. नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज. I'm concerned. I'm caring because I'm concerned. मैं चिंता करता हूं इसलिए मैं केयर करता हूं. तो कितनी बार बोलना है हमें ये? 21 times. So few ways. One way is you can sing it for 21 times. And the next way to learn any word is through antonyms and synonyms. किसके थ्रू? Through antonyms and synonyms. हमने एक वर्ड लिया था स्टूडेंट, ध्यान है आप लोगों को. यहाँ पे एक वर्ड लिया था अबोर. अबोर के मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे. मैंने कहा था डिटेस्ट भी होता है, लॉस भी होता है, हेट भी होता है. कोई और वर्ड स्टूडेंट्स, कोई और वर्ड आपको कोरिलेट लगता हो, जिसमें लगता हो कि अबोर का कुछ सिनोनिम मिल जाए हमें? तो एबोमिनेट इज टू बी नोन एज अबोर ओनली. अब मुझे लव के बताइए क्या क्या हो सकते हैं. लव के सिनोनिम्स बताइए. केयर करना, लव करना, और कुछ? हाँ लाइक, ठीक है. कुछ और? अप्रिशिएट करना. कोई और? हालांकि मैंने आपके बोर्ड पे कुछ लिखे नहीं है. फैसिलिटेशन होता है वर्ड. तो देयर आर सो मेनी अदर वर्ड्स व्हिच आर रिलेटेड टू द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. तो ये भी एक वे है कि जब कभी आप कोई वर्ड याद करने निकलो तो एक बेस्ट वे क्या है स्टूडेंट्स, आप उसके सिनोनिम्स देखने लग जाओ, आप उसके एंटोनिम्स और देखने लग जाओ. तो आपको ध्यान आएगा कि अच्छा इस वर्ड को ये भी कहते हैं, अच्छा इस वर्ड को ये भी कहते हैं. तो there are 2 ways I have told you. One is by singing, another is through antonyms, synonyms. Coming on the next part, please have it. Don't limit yourself to one word. Don't ever. आप सबने एक वर्ड सुना होगा स्टूडेंट, ब्यूटीफुल. सुना है? जैसे हमारी गर्ल्स ने बोला था ब्यूटीफुल गर्ल्स. तो ब्यूटीफुल वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? ब्यूटीफुल वर्ड्स एक एडजेक्टिव है. जब हमें एडजेक्टिव ध्यान है तो हमें उसका नाउन भी पता होना चाहिए, हमें उसकी वर्ब भी पता होनी चाहिए, और हमें उसकी एडवर्ब भी पता होनी चाहिए. तो अगर मैं ब्यूटीफुल वर्ड लेता हूं आपके सामने तो वहीं से मैं एक वर्ड और लूंगा, वो लूंगा ब्यूटीफाई. ब्यूटीफाई वर्ब हो गया, यानी कि ब्यूटीफुल करना किसी को क्या कहलाएगा? ब्यूटीफाई. क्लियर स्टूडेंट? तो आप लोग यहां जोड़ भी कर सकते हो. देखो वर्ब इज ब्यूटीफाई. अच्छा इसका अगर नाउन ले हम तो ब्यूटी इज अ नाउन. ब्यूटी वर्ड इटसेल्फ इज अ नाउन. और अगर मैं इसका एडवर्ब लूं तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एडवर्ब लेना होगा तो ब्यूटीफुली. क्या वर्ड है? ब्यूटीफुली. तो हमने एक ब्यूटीफुल को पकड़ा था और हमने कितने वर्ड बना दिए. देखो ब्यूटीफुल से मैं ब्यूटीफाई बनाया, ब्यूटी बनाया, ब्यूटीफुल बनाया. और कोई वर्ड आप जान सकते हो? मैंने लिख दिया उधर, देखिए देयर इज ब्यूटिशियन. कौन सा वर्ड है? ब्यूटिशियन. ये भी एक अच्छा वे है, आप अपनी रिकॉल कर सकते हो अपनी एनर्जी को. कमिंग ऑन द नेक्स्ट थिंग, यू कैन गो द वर्ड थ्रू सफिक्स एंड प्रीफिक्स. वर्ड के पहले पार्ट को देखो या वर्ड के लास्ट पार्ट को देखो, ये भी बहुत कुछ वर्ड के बारे में बता देता है. और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता और आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाती है.
तो लेट अस सी हाउ. फॉर दैट I have brought few word notes for all of you. I suggest all of you to go through these words. Please एक पेज लेकर आगे दे दो फास्ट. तो हम सबके पास एक नोट्स आ जाएंगे और उस नोट्स के थ्रू हम अपनी आगे की पढ़ाई करेंगे. जब भी आपके पास नोट्स आए स्टूडेंट्स, प्लीज राइट योर नेम एंड देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास. एंड दीज नोट्स आर वेरी नेसेसरी टू मेक यू, टू बिल्ड अप यू एंड टू मेक यू फर्निश पर्सनैलिटी. Hope so the words are reaching to you and this vocabulary is very necessary. And here we have the first word. You can look up here if you are getting the notes. The first word which you are getting is learning words with etymology. हम सबको एक वर्ड मिल गया स्टूडेंट, एटिमोलॉजी. तो आप सबसे पहले इसमें लॉजी को अंडरलाइन करो और उसका मीनिंग लिख लो, स्टडी या साइंस. ये देखिए मेरी तरफ, लॉजी ये रहा, एटिमोलॉजी लॉजी ये रहा. तो लॉजी का मीनिंग क्या लिखना है, स्टडी या साइंस. अच्छा, कंप्लीट एटिमोलॉजी का मीनिंग जानना चाहोगे आप लोग? कंप्लीट एटिमोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी फ्रॉम द रूट्स. लिखिए, स्टडी फ्रॉम द रूट्स, यानी कि किसी भी वर्ड को जड़ से याद करना क्या कहलाता है, स्टडी फ्रॉम द रूट्स. लेट अस सी हाउ. तो हम लोग अपने नोट्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे स्टूडेंट्स और देखते हैं अपने आप को अपडेट हम कितनी स्पीड में करते हैं. शैल वी स्टार्ट? यस, योर फर्स्ट वर्ड इज डैम डेमो. आप साइड वाला वर्ड मेरे साथ बोलिएगा. डैम डेमो के आगे क्या लिखा बच्चों? वेरी गुड. तो हमने नोटिस किया डैम डेमो का मतलब पीपल होता है. आप डेमो का एक और मीनिंग भी लिख सकते हो, टू शो. क्या लिख सकते हो? टू शो. कई बार हम डेमो नहीं मांगते, हम कार लेने जाते हैं, हम कहते भैया डेमो देखेंगे, पहले चला के देखेंगे. तो वो क्या है? टू शो, राइट. मगर यहां पर हमें डेमो का मीनिंग क्या बता रहा है हमारा राइटर? पीपल. क्या बता रहा है? पीपल. तो लेट अस मूव फर्दर. द वर्ड, फर्स्ट वर्ड इज डेमोक्रेसी. जरा पढ़ के बताइए क्या मीनिंग है इसका? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. तो स्टूडेंट्स, क्रेसी को अंडरलाइन करो आप यहां पर, CRACY, क्योंकि क्रेसी का मीनिंग होता है वन हु रूल. क्या मीनिंग होता है क्रेसी का? वन हु रूल. हिंदी में लिखना चाहो तो लिखो, जो राज करता है. क्या कहलाता है? क्रेसी. इसके आगे वर्ड है डेमो. तो लोगों का राज क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी. हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? लोकतंत्र. क्लियर? क्या बोलते हैं? लोकतंत्र. हमारा देश धर्मनिरपेक्ष भी है, तो आप अलग से एक वर्ड लिखो धर्मनिरपेक्ष और उसका मीनिंग लिखो सेक्युलर. फटाफट जल्दी करिए. धर्मनिरपेक्ष क्या कहलाता है? सेक्युलर. क्लियर स्टूडेंट्स? हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. हमारा वर्ड है डेमोग्राफी. क्या वर्ड है? डेमोग्राफी. तो डेमोग्राफी का मीनिंग लिखो. पढ़िए मेरे साथ जोर से पढ़िए. स्टडी फ्रॉम द पॉपुलेशन, बर्थ एंड डेथ्स. स्टडी फ्रॉम द पॉपुलेशन, of the population, birth and deaths. Coming on the next word, inter. Inter का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? Between और among. Among नहीं, इसको among बोलेंगे. Between हमेशा दो के लिए लगेगा, among हमेशा ज्यादा के लिए लगेगा. क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम अंदर चलते हैं हमारे अंदर. इंटरमिंगल का मीनिंग क्या है बच्चों? Mix together. Something mixed together. Intermediate, occurring at or near the middle place. प्लीज आप लोग जोर से बोलिए. Intermolecular. बिटवीन मॉलिक्यूल्स. जो चीज मॉलिक्यूल्स के बीच में हो क्या कहलाएगी? इंटर मॉलिक्यूल्स. तो मीडिएटर वर्ड आपने सुना होगा, मीडिएटर, राइट. कल आप में से किसी की शादी होगी तो मीडिएटर बनेगा, कोई बिचौला बनेगा, राइट. तो मीडिएटर का मीनिंग इटसेल्फ इज समथिंग व्हिच इज इन सेंटर. देयर इज वन वर्ड, इंटरमिशन. बोलिए मीनिंग फास्ट, जोर से. परफॉर्मेंस. तो इंटरमिशन का आप दूसरा वर्ड लिखिए, इंटरवेल. क्या वर्ड लिखोगे? इंटरवेल. वेरी गुड. योर नेक्स्ट वर्ड इज ऑमनिस. ऑमनिस का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? ऑल. तो हम लोग जो भी वर्ड ऑमनी से रिलेटेड होंगे वो सब क्या शो करेंगे? ऑल, सारे. तो ऑमनिबस क्या वर्ड है? सर्विंग सेवरल पर्पसेस एट वंस. एक साथ काफी काम कर लेने. कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, ऑमनी कॉम्पिटेंट. जो डील विथ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर्स, हर तरीके के मैटर से डील करने वाला. कॉम्पिटेंट. कॉम्पिटेंट वर्ड में आप कॉम्पिटिशन को अंडरलाइन कर लो, कॉम्पिटिशन वर्ड लिख सकते हो. नेक्स्ट वर्ड इज ऑमनी डायरेक्शनल. क्या मीनिंग है बच्चों? रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग इन ऑल डायरेक्शन. ऑमनिशिएंट, ऑल नोइंग, सब कुछ जानने वाला. क्या कहलाता है? ऑमनिशिएंट. हम भगवान के लिए कह सकते हैं गॉड इज ऑमनिशिएंट. नेक्स्ट वर्ड इज ऑमनिवोरस.
पढ़िए क्या कहलाता है वो? All many kind of food. हर तरीके के भोजन को खाने वाला क्या कहलाता है? ऑमनीवोरस। मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हो? द बेस्ट एग्जांपल इज मैन। वेरी गुड। डॉग इज ऑल्सो राइट, बर्ड इज ऑल्सो राइट, फिश इज ऑल्सो राइट, और सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है इसका? मैन। राइट। आप यहां पर दो वर्ड और लिख सकते हो, हर्बीवोरस और कार्निवोरस। क्या लिखोगे? हर्बीवोरस, कार्निवोरस। शायद आपने सुना भी होगा, हर्बीवोरस होता है जो ग्रास खाते हैं, कार्निवोरस होता है जो फ्लैश खाते हैं। तो हर्बीवोरस क्या है? ग्रास ईटर्स, और दिस कार्निवोरस फ्लैश ईटर्स। कोई एग्जांपल कार्निवोरस का? लायन, टाइगर, और हर्बीवोरस का कोई एग्जांपल? बुफेलो। ऑल दीज आर हर्बीवोरस। और भी वर्ड होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे अगर आपने सुना हो तो फ्रूट्स खाने वाले को फ्रूगीवोरस कहलाते हैं, राइट। और कुछ लोग तो नरभक्षी होते हैं, सुना होगा आपने नरभक्षी भी, तो उनको इंग्लिश में बोलते हैं कैनिबल्स। क्या वर्ड यूज करेंगे? कैनिबल्स। हम आगे बढ़े स्टूडेंट्स, चलिए। ओमनी प्रेजेंट क्या वर्ड है? ओमनी प्रेजेंट क्या मीनिंग है? प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट रहने वाला। नेक्स्ट इज ओमनीपोटेंट। क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? Having infinite power. इनफाइनाइट पावर, अनलिमिटेड पावर। पोटेंट वर्ड को अंडरलाइन करो, इसके नीचे वर्ड लिखो पोटेंशियल। क्या वर्ड लिखोगे? पोटेंशियल। पोटेंशियल के दो मीनिंग्स होते हैं स्टूडेंट्स। वन इज पावरफुल, जिसे हम पावरफुल बोलते हैं। क्या वर्ड है? पावरफुल। और दूसरा जो मीनिंग है वो है इंपॉर्टेंट। तो दो मीनिंग है, वन इज पावरफुल एंड अनदर इज इंपॉर्टेंट। तो हमने दो वर्ड सीख लिए पोटेंशियल के, ताकतवर और बेहद जरूरी। आगे बढ़े स्टूडेंट्स हम। पैथो, पैथोस, पैथीस, सफरिंग। पैथोजन, एजेंट कॉजिंग डिजीजेस। जैसे मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, तो हम कह सकते हैं दिस इज पैथोजन। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, सिंपैथी। क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? पढ़ के बताओ जरा सब जने जोर से। एक्सप्रेशन ऑफ पिटी, दया। हिंदी में आप लिख सकते हो सहानुभूति। क्या वर्ड लिखोगे? सहानुभूति। उसके नीचे एक वर्ड है एलोपैथी, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय इंड्यूसिंग ऑपोजिट कंडीशन। एलोपैथी एक्चुअली इंग्लिश मेडिसिन होती है। जितनी भी अंग्रेजी मेडिसिन आप खाते हो वो सब क्या कहलाती है? एलोपैथी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो एलोपैथी का ऑपोजिट क्या होगा? होम्योपैथी, सेम इन एक्शन। तो होम्योपैथिक, एलोपैथिक, और थर्ड हमारी कौन सी होती है? आयुर्वेदिक। तो तीन तरीके की दवाइयां होती है, वन इज एलोपैथिक, अनदर इज होम्योपैथिक, एंड थर्ड इज आयुर्वेदिक। इज इट क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या है स्टूडेंट? द कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इन अदर्स फीलिंग्स। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में याद करना चाहें तो एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, आप ध्यान से सुन लो। पुटिंग योर फुट इन अनदर्स शूज एंड सी द वर्ल्ड इज नोन एज एम्पैथी। अपने पांव को दूसरे के जूते में डालकर संसार को देखना क्या कहलाता है? एम्पैथी। और जिस व्यक्ति में एम्पैथी बहुत अच्छी है वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, वो बहुत अच्छा टीचर है, वो बहुत अच्छा फ्रेंड है। एम्पैथी का मतलब क्या है? अपने आप को उस व्यक्ति की तरफ रखकर देखना। सिंपैथी में सिर्फ हम सहानुभूति देते हैं, मगर एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी फॉर आवर पर्सनैलिटी ऑल्सो। इज इट ओके? कमिंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, पैथोग्नोमी, स्टडी ऑफ इमोशंस। पैथोलॉजी क्या वर्ड है? साइंस ऑफ बॉडीली डिजीज। कमिंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, हिट्रो, मीनिंग क्या स्टूडेंट? डिफरेंट। तो यहां पर आप एक और वर्ड लिख लो, होम्यो, मीन सेम, HOMEO, सेम। होम्यो क्या मीनिंग है? सेम। हिट्रो, देखो यहां पर चार वर्ड्स है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक साथ पढ़ देता हूं। हिट्रोक्रोमेटिक, मॉर्फिक, साइक्लिक, हिट्रोजीनियस। लास्ट वाले वर्ड पे आओ, हिट्रोजीनियस मींस डाइवर्स इन कैरेक्टर। तो यहां पर आप एक वर्ड और लिख लो, होमोजीनियस। शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, होमोजीनियस एलिमेंट, हिट्रोजीनियस एलिमेंट पढ़े थे स्टूडेंट्स। तो होमोजीनियस एलिमेंट वो होते हैं जो सेम इन कैरेक्टर, और हिट्रोजीनियस कौन से होते हैं? जो डिफरेंट इन कैरेक्टर। Clear students? So now come back of again a very interesting session is waiting for you. As I told you students, one good thing is there for you. Please have a look. I want you to go through that thing and you will learn so many interesting things. Please give a glance over here students, all of you together. Please look here.
लिंकिंग एंड विजुअलाइजेशन। वर्ड को कैसे याद करना है, प्लीज हैव अ लुक। एसोसिएट अ न्यू वर्ड विद अनदर वर्ड इंफॉर्मेशन विच यू ऑलरेडी नो, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, where you associate a new word with an image or visual situation, as whatever we see we do not forget. Let's apply this. एक word देखते हैं हम। फर्स्ट वर्ड आ रहा है हमारे सामने एक्सट्रपेट। एक्सट्रपेट का मतलब होता है हटाना, जो चीज हमें पसंद ना हो, बैड हो, अनवांटेड हो, उसे हम हटा देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एक्सट्रपेट। तो उसमें कुछ एग्जांपल है बहुत अच्छे। तो बहुत अच्छा एग्जांपल आ रहा है हमारे सामने कि इस न्यूज के अंदर ये वर्ड एक्सट्रपेट बोल रहा है। अब इस वर्ड को हमें याद करना है, तो हम बोलेंगे एक्स्ट्रा पेट को हटाना। हमें से कितने लोग इनका पेट बहुत मोटा है, तो वो क्या चाहेंगे, अपने पेट को कम करना। तो वो यही कर रहा है व्यक्ति, वो अपने पेट को क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा पेट, अपने एक्स्ट्रा पेट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो आप मेरे ख्याल से ये वर्ड कभी नहीं भूलोगे। इसके स्पेलिंग आप सब लिख लो, EXTIRPATE। इज इट ओके स्टूडेंट्स? तो ये एक छोटा सा पार्ट मुझे कि इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। देयर इज अनदर वे। आप यहां पर वर्ड लिखो एक्स्ट्रपेट। क्या वर्ड लिखोगे, एक्स्ट्रपेट। आप इस वर्ड को कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको सिर्फ क्या याद रखना है, एक्स्ट्रा पेट को कम करना। क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा पेट। हम एक और मूवी देखते हैं इधर की तरफ, लुक अप हियर, सीमली। क्या वर्ड है, सीमली, SWEMLY, मतलब बिहेवियर, वेल ड्रेस्ड, वेल अच्छे से बात करना, क्या कहलाता है, सीमली। अब इसके अंदर अगर हमें वे देखना है, तो हमें बहुत अच्छी बात है, शाहरुख खान वाली एक शूटिंग चल रही है और वह काजोल की ट्रेन छूट गई, तो शाहरुख खान उसमें बहुत हंसता है जिन से और बहुत खुश होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि शाहरुख खान को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड सीमली टू बिहेव लाइक दिस। तो यहां पर हमने सीमली वर्ड को यूज किया है। तो क्यू कार्ड इज द बेस्ट वे वेयर यू कैन लर्न, एंड देयर इज अनदर एग्जांपल्स आल्सो। तो क्यू कार्ड एक बेस्ट वे स्टूडेंट्स, जिसमें आप एक वर्ड लिखो और उसके बैक साइड में उसका मीनिंग लिख लो और आप याद करो उस वर्ड। दैट्स द बेस्ट वे। अभी हमारे पास बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो हम तेजी से रिकॉल करेंगे, याद करेंगे और फटाफट उनको ग्रैब कर लेंगे। लेट अस मूव फर्दर। हमारे पास बहुत से वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स अभी भी हमारी वोकैब को इंप्रूव करने के लिए, और हम उन वर्ड्स पे जल्दी जल्दी चलेंगे। स्टूडेंट्स, हम कुछ वर्ड्स को यूज करें उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा इन अ नट शेल। नट का मीनिंग क्या होता है, छोटा, है ना। तो सारी बातों के सारांश में मैं अगर ये कहना चाहूं तो मैं इसकी जगह क्या बोलूंगा इंग्लिश में, इन ए नट शेल। आपको याद हो गया ये वर्ड, क्या बोलना है, इन ए नट शेल, राइट। कुछ मूवीज हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। मैंने एक बार मूवी देखी थी अपने, एंड उसमें धर्मेंद्र वाज सेइंग कम व्हाट मे। क्या बोलता है धर्मेंद्र, कम व्हाट मे। इसका मीनिंग होता है अब चाहे जो हो। तो आप जॉट कर सकते हो वर्ड कम व्हाट मे इज टू बी नोन एज अब चाहे जो हो। लिख लोगे आप अपने आप, कम व्हाट मे क्या कहलाएगा, लिख दो स्टूडेंट्स, कम व्हाट मे। क्लियर, कम व्हाट मे। कमिंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, व्हेन आई वाज वाचिंग मूवी, शायद धूम 3 था या धूम 2 थी, ऋतिक रोशन की मूवी थी। धूम 2 थी 3 थी, 2 थी। तो उसमें विपाशा बसु बोलती है दैट ही ऑलवेज डिस्गाइज अदर्स, DISGUIS, डिस्गाइज अदर्स। ही ऑलवेज डिस्गाइज अदर्स। डिस्गाइज का मतलब होता है छद्म वेश धारण करना। तो आप लिख सकते हो बहरूपिया टाइप ड्रेस इज टू बी नोन एज डिस्गाइजिंग अदर्स। तो मूवीज हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है, बस हमें ध्यान रखना है कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है। तो हम डिस्गाइज वर्ड अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। आई एम नॉट रिकॉलिंग अ मूवी, बट उसमें एक एक्ट्रेस होती है और उससे पूछा जाता है कि आपका कैसे चल रहा है, कैसे दिन चल रहा है। तो बोलती है आई हैव अ बॉल। क्या बोलती है, हैव अ बॉल, हैव अ बॉल। तो इसका मीनिंग होता है इंजॉइंग लाइफ। हैव अ बॉल, क्या वर्ड यूज करोगे आप, हैव अ बॉल, एंड मीनिंग क्या है इसका, इंजॉइंग लाइफ। क्लियर।
आप लोगों ने 2-3 वर्ड और सुने होंगे स्टूडेंट्स। हमने बोला है कई बार कि मिस्टेक का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है। कोई कहता है ऐसे बहुत बड़ी गलती कर दी तो उसको हम बोल देंगे ब्लंडर। क्या वर्ड यूज करेंगे? ब्लंडर। मगर आपको मैं उससे भी बड़ी बात बताता हूं, कई बार एक वर्ड होता है हिमालयन बंडर। बोलो मेरे साथ, हिमालयन बंडर। हाँ, हिमालय बहुत बड़ा है तो बहुत बड़ी मिस्टेक क्या कहलाएगी? हिमालयन ब्लंडर। पहला क्या है? छोटी मिस्टेक है तो क्या है? मिस्टेक। थोड़ी बड़ी भूल है तो क्या है? ब्लंडर। और बहुत बड़ी मिस्टेक है तो क्या कहलाएगी? हिमालयन ब्लंडर। क्या कहलाएंगे? हिमालयन ब्लंडर। वन मोर इंटरेस्टिंग वर्ड, ईव टीजिंग। क्या वर्ड है? ईव टीजिंग। आपने इस वर्ड को याद करने के पहले मैं आपको एक वर्ड और लिखता हूं, रोड साइड रोमियो। क्या वर्ड है? रोड साइड रोमियो। हमारी जितनी भी गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं तो उन लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि जब वो बाइक चलाते हैं या रोड में जाते हैं तो कई रोड साइड रोमियो मिलते हैं। एग्री करते हो आप लोग? है ना भाई? और वो क्या बोलते हैं? हेलो, हाय, कहीं ना कोई वो तंग करते हैं। तो तंग करना यानी कि छेड़ना इज नोन एज ईव टीजिंग। ईव गर्ल्स को कहा गया है। तो एक पर्टिकुलर वर्ड है गर्ल्स को छेड़ने का, दैट इज टू बी नोन एज ईव टीजिंग। बट ड्यूरिंग दीज थिंग्स उनको ध्यान होना चाहिए कि उनके घर में भी मदर्स और सिस्टर्स है। तो ये वर्ड है ईव टीजिंग इज टू बी नोन एज गर्ल्स को छेड़ना, तंग करना, मतलब हैरास करना। और जो रोड साइड रोमियो, ये शायद आप समझ गए होंगे क्या है, राइट? सड़कों पे खड़े होते रहते हैं, सीटी बजाते रहते हैं, ठीक है, टाइम पास करते रहते हैं, तो वो लोग क्या कहलाते हैं? रोड साइड रोमियो। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे वर्ड्स लिए थे जो आपको बेनिफिट दे सकते हैं। कमिंग ऑन और मोर इंपोर्टेंट एस्पेक्ट स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे बिना नोट्स के एक चीज डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स प्लीज आप सब मेरे साथ आ जाओ और लुक अप हियर ऑल ऑफ यू। एक वर्ड है स्टूडेंट क्रोनोस। प्लीज आप लिख लो, मैं आप लोग लिख के लिए देता रहूंगा यहां पर। हैव अ लुक ओवर हियर, क्रोनोस। प्लीज आ जाइए। CHRONOS। क्या वर्ड है? क्रोनोस। प्लीज अपनी कॉपी में लिखिए फास्ट। क्रोनोस का मतलब आप लिखिए टाइम। क्या मीनिंग है? यानी कि दुनिया में कभी भी क्रोनोस वर्ड से रिलेटेड कोई भी वर्ड होगा तो हमेशा कहीं ना कहीं टाइम से रिलेटेड होगा। एग्री करें? आगे बढ़े, चलो। फर्स्ट वर्ड लिखेंगे सिंक्रोनस। क्या बोलेंगे? सिंक्रोनस। क्या वर्ड है? मैंने क्या लिखवाया है? सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब होता है टू हैपन एट द सेम टाइम, क्योंकि सिन का मतलब टुगेदर होता है। सिन का मतलब क्या होता है? टुगेदर। तो सिंक्रोनस का मीनिंग क्या है? टू हैपन। बोलिए मेरे साथ, टू हैपन एट द सेम टाइम। क्या कहलाएगा? सिंक्रोनस। मैं एक और वर्ड लेता हूं, क्रोनोलॉजी। क्या वर्ड है? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है पास्ट इवेंट से प्रेजेंट की तरफ चलते हुए सिस्टम बिठाना। एग्जांपल दूं आपको, सबसे पहले कौन हुआ था मुगल साम्राज्य में? बाबर। बाबर का बेटा हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। कोई ऐसा ही सिस्टम था। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आना क्या कहलाता है? क्रोनोलॉजी। दिस इज टू बी नोन एज। मेरा थर्ड वर्ड है क्रॉनिक। क्या वर्ड है? क्रॉनिक। आप सबको विजिबल तो है ना वर्ड? नहीं है तो अपने कलीग्स को प्लीज देख लो। क्रॉनिक। क्रॉनिक होता है बच्चों लंबे समय चलने वाला। क्या कहलाता है? लंबे समय चलने वाला। क्या कहलाती है? क्रॉनिक। जैसे कोई डिजीज लेते हैं, देखिए आपको कोल्ड हुआ, कोल्ड को साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। कोल्ड हम अपनी लैंग्वेज तक बोलते हैं, मगर हम डॉक्टर से जब मिलने जाएंगे तो हम डॉक्टरों को भी कोल्ड नहीं बोले, हम बोलेंगे सर इन्फ्लुएंजा, तो वो ज्यादा समझेगा, ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। कमिंग ऑन दिस वर्ड क्रॉनिक, तो किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, किसी को टाइफाइड है, तो वो लंबे समय चलेगा बच्चों, क्या कहलाएगा? क्रॉनिक। मगर यदि आपको कफ एंड कोल्ड है, कितने दिन चलता है? एग्री करते हो? 2 days, 4 days, 5 days, राइट? तो वो इसका ऑपोजिट हो जाता है एक्यूट। क्रॉनिक का ऑपोजिट क्या होता है? एक्यूट। क्या कहलाएगा? एक्यूट। क्लियर? तो हमने क्रॉनिक वर्ड से मतलब क्रोनोस से बहुत कुछ सीख लिया है कि हमने क्रोनोस से रिलेटेड हमेशा वर्ड क्या होगा? टाइम। तो एक वर्ड और ले लेते हैं हम, क्रोनोमीटर। क्या लेंगे? बोलिए मेरे साथ, क्रोनोमीटर। तो द
इंस्ट्रूमेंट विच मेजर टाइम इज नोन एज क्रोनोमीटर। वो इंस्ट्रूमेंट्स जो टाइम को मेजर करे क्या कहलाएगा बच्चों? क्रोनोमीटर। यहां पर आप 2 वर्ड और लिख लो, एक लिख लो यूडोमीटर, यूडीओ। यूडोमीटर का मतलब होता है बच्चों वर्षामापी। क्या होता है? वर्षामापी। और एक होता है सिस्मोमीटर, SEIS। क्या बोला मैंने? SEIS, सिस्मोमीटर। वो क्या होता है स्टूडेंट्स? अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी मेजर करने वाला क्या कहलाता है? सिस्मोमीटर। अब मैं आपके साथ एक 3 वर्ड्स और डिस्कस करने जा रहा हूं, प्लीज आप लोग इधर ग्लांस करो। पैटर, मैटर, फ्रेटर। बोलो मेरे साथ, पैटर, मैटर, फ्रेटर। क्या वर्ड है? पैटर, मैटर, फ्रेटर। हम लोग इस वर्ड को देखते हैं। पैटर वर्ड हमेशा होता है फादर से रिलेटेड। किससे? फादर से रिलेटेड। मैटर होता है मदर से रिलेटेड। तो यहां पर हम वर्ड लेते हैं पैटर्नल। हमेशा किससे रिलेटेड होगा? बोलिए मेरे साथ, किससे होगा? फादर से। और पैटर्निटी अगर मैं वर्ड बोल दूं तो ना ना ना, मदर क्यों होगा बच्चे? पैटर ना, पैटर्निटी। इंग्लिश में इसका मीनिंग लिखिए फादरहुड। क्या बोलोगे? फादरहुड, HOOD। और अगर मैं बोलता या मैटरनिटी तो क्या होता? मदरहुड, रिलेटेड टू मदर। आपने मामा को क्या बोलोगे? मैटरनल अंकल। चाचा को क्या बोलोगे? पैटर्नल अंकल। अंडरस्टूड? कमिंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, फ्रेटर वर्ड मैंने आपको दिया था, फ्रेटर्निटी। कोई मुझे इसका बता सकता है? ब्रदरहुड। क्या कहलाएंगे? ब्रदरहुड, ब्रदरहुड। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भाईचारा। तो फ्रेटर्निटी वर्ड क्या हुआ? भाईचारा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने पैटर वर्ड से बहुत कुछ सीख लिया, मैटर से बहुत कुछ सीख लिया। मैटरनिटी हॉस्पिटल सुना होगा आपने, इट्स अ कॉमन यूज। और फ्रेटर का मतलब समझिए रिलेटेड टू ब्रदर। अब हम एक नया वर्ड और नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। वो एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और हमें बहुत कुछ सिखा देगा। दैट इज साइड। साइड से आप लोगों को एक वर्ड तो जरूर याद आया होगा। प्लीज लुक अप हियर, सुसाइड। एग्री करते हो? साइड का मतलब होता है स्टूडेंट किलिंग। लिखिए मेरे साथ, क्या वर्ड है? किलिंग। किलिंग का मतलब क्या होता है? मारना। यहां तक क्लियर है? किलिंग मतलब मारना, खत्म करना। तो सुसाइड का मतलब खुद को मारना है, ये तो पता ही होगा आपको, है ना? फादर का क्या था? पैटर। तो पैट्रीसाइड क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? फादर को मारना। मैट्रीसाइड क्या कहलाएगा? मदर को मारना। मैट्रीसाइड। ब्रदर को फ्रेट्रीसाइड। सिस्टर को सोरोरीसाइड। नया वर्ड आ चुका है, देखिए इधर, सोरोरी। स्पेलिंग लिख लीजिए मेरे साथ, SORORI साइड। सोरोरीसाइड क्या कहलाएगा? किलिंग ऑफ वंस ऑन सिस्टर। इसी तरीके से और भी बहुत बड़ा स्टूडेंट, एक होता है रेजीसाइड। रेजीसाइड, राजा को मारना। एक होता है जीनोसाइड। जीनोसाइड। ऐसे बहुत से वर्ड्स स्टूडेंट्स, तो हम लोग हर डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, मगर ये है कि आपको क्लैरिटी आज मिल चुकी होगी साइड मीनिंग की। कमिंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड रिलेटेड टू योर ओन पर्सनालिटी और विच विल डेवलप योर वोकैब, दैट इज एमबी। क्या वर्ड है स्टूडेंट्स? एमबी। एमबी का मतलब होता है हमेशा डबल। क्या मीनिंग होगा? वेयर यू आर नॉट श्योर। एमबी, डबल मीनिंग, डबल बात, डबल थिंग, डबल थिंग। आपके घर पे आपके फादर से मिलने कोई फ्रेंड आए और आपके पापा तो नहीं है घर पे, आपसे मिले और वो बोले बेटा आपके दादाजी के दादाजी कहां है? तो आपके दादाजी के दादाजी जिंदा भी हो सकते हैं भाई, क्या बड़ी बात है, और नहीं भी हो सकते। तो आपने उन्हें बोला ऊपर है। अब ये 2 मीनिंग है, या तो फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हैं या फिर वो बिल्कुल ही ऊपर है। तो ये डबल मीनिंग बात नहीं होगी, एम्बिग्यूटी हो गया। तो यहां पे जो वर्ड है, सबसे पहले हम वर्ड लेते हैं एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी, AMBIGUITY। आप मीनिंग लिखो इसका, डबल मीनिंग। फटाफट लिखिए, एम्बिग्यूटी का मीनिंग क्या है? डबल मीनिंग। कमिंग नेक्स्ट वर्ड रिलेटेड टू दिस इज एम्बिवर्ट।
क्या वर्ड है? एम्बीवर्ट। स्टूडेंट एक्चुअली दो टाइप की पर्सनालिटीज होती है, एक होता है एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ज्यादा बोलता है। आप में से एक्सट्रोवर्ट कौन कौन है? ज्यादा बोलने वाले बच्चे कौन कौन है? और एक होता है इंट्रोवर्ट, कम बोलने वाला। आप में से कम बोलने वाला तो मुझे कोई भी नहीं लगा। तो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, तो एम्बीवर्ट इसका मिड का है। क्या है? ना ज्यादा बोलता है ना कम बोलता है। क्या कहलाएगा? एम्बीवर्ट। एक्सट्रोवर्ट क्या है? ज्यादा बोलने वाला। इंट्रोवर्ट क्या है? कम बोलने वाला। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसी तरीके से एक और वर्ड है एम्बी से ही रिलेटेड, एम्बीडेक्स्ट्रस। बोलिए मेरे साथ, डेक्स्ट्रस। देखिए जरा क्या वर्ड है? एम्बीडेक्स्ट्रस। क्लियर ऑल ऑफ यू? दिस वर्ड इज एम्बीडेक्स्ट्रस। तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मीनिंग है स्टूडेंट्स दोनों हाथों से लिखने वाला। क्या कहलाएगा? दोनों हाथों से लिखने वाला क्या कहलाता है? एम्बीडेक्स्ट्रस। तो जब दोनों हाथों से जो लिखेगा उसको हम बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। हु कैन राइट दिस राइट हैंड ऑल्सो, हु कैन राइट हैंड लेफ्ट हैंड ऑल्सो, राइट हैंड ऑल्सो, बोथ हैंड्स आर टू बी नोन एज एम्बीडेक्स्ट्रस। तो हम लोगों ने एम्बी वर्ड से बहुत कुछ सीख लिया स्टूडेंट, शायद बहुत इनफ है। अब हम नए वर्ड पे आते हैं। हमारे एक वर्ड है स्टूडेंट बहुत अच्छा, दैट इज रिलेटेड टू बैने। क्या वर्ड है? बैने। लिखिए मेरे साथ, बैने का मतलब हमेशा होगा अच्छा। क्या मीनिंग होगा? हमेशा अच्छा। तो आप यहां पर मीनिंग लिख सकते हो गुड, वेल। तो आपको वर्ड बता देता हूं मैं। आपने बेनिफिट सुना है? बताइए बेनिफिट वर्ड अच्छा है कि बुरा है? अच्छा। सबका भला है, राइट। हम अगले वर्ड पे चलते हैं, बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन का मीनिंग लिखिए ब्लेसिंग्स। क्या मीनिंग है बेनेडिक्शन का? ब्लेसिंग्स। मीनिंग क्या है इसका? आशीर्वाद। कमिंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, बेनेफैक्टर, अच्छा करने वाला, भला करने वाला। क्या कहलाता है? बेनेफैक्टर। लिख रहे हैं आप सब? तो वी हैव नोन दैट मैने का मतलब हमेशा क्या होगा? वेल, गुड, बहुत अच्छा। तो चलिए इसके ऑपोजिट चलते हैं, मॉल। दुनिया में एक वर्ड है मॉल, MAL। इसका मतलब होता है हमेशा बुरा। MALL नहीं कह रहा मैं, क्योंकि MALL तो वो मॉल हो गया। जैसे हमारे गंगानगर में CGR मॉल है, वो मॉल नहीं कर रहा मैं आपको सिंगल L की बात कर रहा हूं, मॉल। तो दुनिया में जब भी आपको मॉल वर्ड से रिलेटेड कोई भी वर्ड मिलेगा तो हमेशा बुरा होगा। आपको एग्जांपल दूं, मॉल न्यूट्रिशन। मॉल न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कुपोषण। क्या कहेंगे? कुपोषण। क्या कहलाता है? मॉल न्यूट्रिशन। मॉल फंक्शनिंग, ये सब वर्ड्स क्या कहलाते हैं? दीज ऑल वर्ड्स आर मॉल मीन्स बैड और बैने मीन्स गुड। तो हमने दो पार्ट दोबारा से सीखे। एक पार्ट सीखा मॉल और एक पार्ट क्या सीखा? बैने। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, एंटी। क्या वर्ड है? एंटी। इस वर्ड को आपको देख के समझ गए होंगे, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। एग्री करते हो मुझसे? इसका मतलब क्या है? अगेंस्ट। व्हेन वी आर अगेंस्ट समथिंग वी विल ऑलवेज यूज द वर्ड, क्या वर्ड यूज करेंगे? एंटी, अगेंस्ट। लो एक वर्ड करते हैं, एंटीपैथी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दो वर्ड करवाए थे, एक करवाया था सिंपैथी और एक करवाया था एम्पैथी। सिंपैथी का मैंने आपको मीनिंग बताया था, उसका मीनिंग होता है सहानुभूति देना। क्या मीनिंग होता है? सहानुभूति देना। और एम्पैथी का मैंने आपको मीनिंग बताया था अपने आप को उस जगह पर रखकर देखना और आगे बढ़ना। यहां तक क्लियर है? अब ये जो एंटीपैथी है इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे। पैथी का मतलब अगर सहानुभूति कुछ है तो इमोशन से रिलेटेड, मीन्स व्हेन वी आर अगेंस्ट समबडी, व्हेन वी डिसलाइक समबडी। क्योंकि वहां पर हम किसी को पसंद कर रहे हैं, किसी को सहानुभूति दे रहे हैं, मगर यहां पर क्या कर रहे हैं? ओपोज कर रहे हैं। तो आप ओपोज लिख सकते हो, डिसलाइक लिख सकते हो, सो मेनी अदर्स, पर आप मीनिंग समझ गए होंगे। एंटी का मतलब व्हेन वी आर अगेंस्ट समबडी। एक अच्छा वर्ड लेते हैं यहां पर, एंटी पायरेटिक। स्टूडेंट्स, पायरे का मतलब होता है टेम्परेचर। लिखिए मेरे साथ, पायरे का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। यहां तक क्लियर है? जब किसी को टेम्परेचर होगा और वो उसके एंटी कोई चीज खाएगा तो बताओ टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। तो जब आपको बुखार होता है तो आप कौन सी टैबलेट खाते हो? आप खाते हो कॉलपॉल जिसमें पैरासीटामोल होती है, मेटासिन जिसमें पैरासीटामोल होती है। वो सब क्या करती है? आपके फीवर को कम करती है, आपके टेम्परेचर को
कम करती है। तो एंटीपायरेटिक का मतलब होता है वन हु रिड्यूसेस फीवर, वन हु रिड्यूसेस टेम्परेचर इज टू बी नोन एज एंटीपायरेटिक। जो बुखार कम करे वो क्या कहलाएगी? एंटीपायरेटिक। तो आप जब मेडिकल स्टोर पे जाओ उसको बोलो भैया मुझे ना 2 एंटीपायरेटिक दे दे, तो वो समझेगा नहीं, आपको उसे बोलना पड़ेगा भैया पैरासीटामोल दे दे, जो कि एक एंटीपायरेटिक दवाई है। क्लियर है स्टूडेंट्स? शैल वी मूव फर्दर? इसी तरीके से स्टूडेंट एक अच्छा वर्ड होता है एंटी क्लॉकवाइज। आप में से कितने लोग हैं जो कॉम्पिटिशन वगैरह की तैयारी करते हैं? मैक्सिमम है यहां पर। तो लुक एट दिस वर्ड एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलती है बच्चों? एंटी अगर चलानी है तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें वर्ड याद हो गया शायद, एंटी। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अब हम एक नए दुनिया में नए वर्ड के अंदर एंटर होने जाएंगे, मगर उससे पहले इस एंटी को भी हम कोरिलेट करेंगे किसी एक और वर्ड से, दैट इज ANTE। लिखिए मेरे साथ, ANTE। कभी भी आपके सामने कोई भी वर्ड ऐसा है जिसकी शुरुआत किससे हो, इधर देखिए ANTE, तो हमेशा इसका मीनिंग होगा प्रायर। अच्छा, जो मैंने पहले कराया था इसका मतलब क्या था? बोलिए मेरे साथ, अगेंस्ट। तो हमने देखो इतने से स्पेलिंग के अंदर डिफरेंस आ गया कि एंटी का मतलब यहां पर क्या है? अगेंस्ट, और यहां पर एंटी का मतलब क्या है? प्रायर। है ना डिफरेंस? बिग डिफरेंस है, एग्री करते हो? तो जब कभी ऐसा वर्ड आए तो आपको एक वर्ड लिखवा देता हूं मैं, एंटी नेटल। और जो नेटल वर्ड लिया गया नेटिव प्लेस से, किससे लिया गया? नेटिव प्लेस से। अब मुझे बताइए कि नेटिव प्लेस आपका कौन सा है? आपका घर, जहां पर आपका जन्म हुआ होगा, या जहां पर आपका बचपन बीता होगा। एग्री करते हो? तो हम जब ऐसे वर्ड की बात करते हैं तो हम इसको नेटल प्लेस करेंगे, नेटिव। तो एंटी नेटल का मतलब हो गया जन्म से पहले वाला स्थान। एंटी नेटल, बिफोर बर्थ, इज नोन एज एंटी नेटल। और अगर टी आई है तो अगेंस्ट। तो दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। अगर एंटी है तो अगेंस्ट, और अगर ANTE है तो मीनिंग क्या हो जाएगा? प्रायर। अब हम एक नए वर्ड की तरफ चल रहे हैं स्टूडेंट्स। ये वर्ड लिखो मेरे साथ, सीडो। इसमें P साइलेंट रहेगा। क्या स्पेलिंग लिखी है मैंने? देखना, देखो, TSEUDO। मिल गया आप सबको? मिल गया वर्ड? क्या वर्ड है? सीडो। सीडो का आप मीनिंग लिखिए फॉल्स। क्या वर्ड है? फॉल्स। क्या वर्ड है? फॉल्स। तो चलिए एक वर्ड क्या है ये? फॉल्स नेम। लुक अप हियर। क्या वर्ड है? फॉल्स नेम। क्या कहलाता है? सीडोनिम। बोलिए मेरे साथ, सीडोनिम। सीडोनिम से मतलब फॉल्स नेम। क्या कहलाएगा? फॉल्स नेम इज टू बी नोन एज सीडोनिम, क्योंकि सीडो से रिलेटेड वर्ड हमेशा फॉल्स होगा। तो चलिए एक और वर्ड देखो, सीडोलॉजिस्ट। सीडोलॉजिस्ट, बोलो मेरे साथ ये वर्ड, सीडोलॉजिस्ट। जो झूठा व्यक्ति होता है, लायर होता है, उसको हम क्या कहेंगे? सीडोलॉजिस्ट। अनदर वर्ड इज गैम, गैमो, गैमी। मेरे साथ देखिए स्टूडेंट्स, गैम, गैमो, गैमी। इट इज रिलेटेड टू वर्ड मैरिज। किससे रिलेटेड है? मैरिज से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है स्टूडेंट्स? रिलेटेड टू मैरिज। गैमी का मतलब मैरिज। तो देखो वर्ड एक मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंगल मैरिज एट अ टाइम इज टू बी नोन एज मोनोगैमी। और अगर पॉलीगैमी है तो क्या होगा? पॉलीगैमी। क्या कहलाएगा? एक से ज्यादा शादियां। कौन से धर्म में एक से ज्यादा शादियां? मुस्लिम्स। अदरवाइज हिंदूज में क्या है? मोनोगैमी। इज इट क्लियर टू स्टूडेंट्स? और इसी से रिलेटेड एक और वर्ड आया था, मिसोगैमिस्ट। क्या वर्ड है? मिसोगैमिस्ट। तो गैमी का मतलब मैरिज है, मिसो का मतलब नफरत करना होता है। लिखिए मेरे साथ, मिसो का मतलब क्या है? नफरत करना। तो मैरिज से नफरत करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? मिसोगैमिस्ट। तो आप लिखिए, हेटर ऑफ मैरिज इज टू बी नोन एज, हेटर ऑफ मैरिज इज टू बी नोन एज मिसोगैमिस्ट। आप सब नोट कर सकते हो स्टूडेंट्स? इज इट ओके? वायबल टू ऑल ऑफ यू? विजिबल? इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग वर्ड पार्ट को जितना मर्जी इंप्रूव करें, जितने बड़ी वर्ड सीखें, और कितना भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे एक वर्ड आया आपके सामने, रप्ट। रप्ट का मीनिंग लिखो ब्रेक। लिखिए मेरे साथ, ब्रेक क्या है? तोड़ना। तो आपने करप्ट सुना होगा स्टूडेंट्स।
सुने, करप्ट। मॉरलिटी को तोड़ना क्या कहलाता है? करप्शन, भ्रष्टाचार। जब आप मॉरलिटी को तोड़ोगे तो क्या कहलाओगे? करप्ट। इसी तरीके से एक वर्ड होता है इरप्ट। वॉल्केनो में से क्या निकलता है? इरप्शन निकलता है। वॉल्केनो क्या होता है? वॉल्केनो बच्चों ज्वालामुखी, उसमें से क्या निकलता है? इरप्शन। तो वो क्या कहलाएगा? इरप्ट, ब्रेक। वो ब्रेक करते हुए बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? लावा, इरप्शन ऑफ लावा। हॉट लावा इज टू बी नोन एज इरप्शन। इज इट ओके स्टूडेंट्स? दो लोग बात कर रहे हैं तो आप क्या करोगे? आप उनकी बात को ब्रेक कर दोगे, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरप्ट। देयर इज वन वर्ड। तो हम लोगों ने सारे वर्ड इसे सीख लिए सिर्फ एक वर्ड से। कौन सा है वो वर्ड? रप्ट। क्या कहलाता है? ब्रेक, करप्ट, इरप्ट, इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब दो लोग बात कर रहे हैं, बीच में क्या करेंगे हम? इंटरप्ट कर देंगे। इरप्ट का मतलब बाहर आना, वॉल्केनो पे से। करप्ट का मतलब मॉरली डिसऑनर। दिस इज टू बी नोन एज दिस वर्ड्स। इसी तरीके से हम एक और वर्ड लेंगे दैट इज रिलेटेड टू मोनो। मोनो का मतलब मुझे कोई बता सकता है? शायद आप में से मैक्सिमम जानते भी होंगे मोनो का मीनिंग। वन। और टू का मतलब क्या होता है? बाय। थ्री का ट्राई, फोर का टेट्रा, फाइव का पेंटा, गुड, सिक्स का, सेवन का, एट का ऑक्टो, नाइन का नैनो, 10 का डेका, 11 का ओके। आई थिंक यू ऑल आर इटालियन नाउ। तो मोनो का अगर आपको पता है तो आपको एक वर्ड शेयर करते हैं, मोनोग्लोट। बोलो मेरे साथ। आप में से कोई मोनोग्लोट है क्या बच्चे? मोनोग्लोट का मतलब है वन लैंग्वेज यूज करने वाला। और गंगानगर में हम कम से कम 3-4 लैंग्वेजेस एक साथ बोलते हैं, राइट? हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी सब कुछ आने दो। तो हम लोग क्या करते हैं? मोनोग्लोट नहीं है, हम लोग पॉलीग्लॉट है। तो मोनोग्लोट का मीनिंग लिखो, सिंगल लैंग्वेज यूज करने वाला क्या कहलाएगा? मोनोग्लोट। और हम लोग क्या है? बोलो मेरे साथ। पॉलीग्लॉट। हम ज्यादा लैंग्वेज यूज करते हैं। उसी तरीके से मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था डेमोक्रेसी नोट्स के अंदर, याद है आपको? तो यहां पर मैं आपको एक वर्ड सिखाने जा रहा हूं, मोनोक्रेसी। क्योंकि मोनो का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? सिंगल। तो क्रेसी का मतलब क्या था? जो राज करता है, याद है आपको? तो सिंगल राज, सिंगल गवर्नमेंट क्या कहलाती है? मोनोक्रेसी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देयर आर सो मेनी वेज। मोनोसिफेलस, मेरे साथ एक वर्ड लिखो जरा। सिंगल हेड मैन, मोनोसिफेलस। जिसका सिंगल हेड हो क्या कहलाता है? मोनोसिफेलस। तो बताओ रावण को हम क्या कहेंगे? डेकासिफेलस, 10 सिर वाला था, राइट? तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? मोनोसिफेलस। तो हमारे पास एक वर्ड आ गया है। एक वर्ड हम लेते हैं मोनोथीजम। क्या वर्ड है? थीजम। तो आप लोगों ने दो वर्ड लाइफ में सुने होंगे। एक सुना होगा थीस्ट और एक सुना होगा अथिस्ट। थीस्ट का मतलब होता है बच्चों आस्तिक। लिखिए मेरे साथ। थीस्ट का मतलब क्या है? आस्तिक। और अथिस्ट का मतलब नास्तिक। तो मोनोथीज्म का मतलब सिंगल गॉड पे विश्वास करने वाला क्या कहलाता है? मोनोथीज्म। अब अपने चलते हैं स्टूडेंट थोड़ा सा एक ऐसे पार्ट के अंदर जो इंटरेस्टिंग है और जो कोरिलेट करेगा हमारी लैंग्वेज को। तो आइए लेट अस कम बैक और एंजॉय करो इस पार्ट को। अभी भी 3 वर्ड्स है ऐसे। एक सैगेशियस वर्ड होता है स्टूडेंट, प्लीज कम अप हियर। सैगेशियस, लुक अप हियर। Meaning of the word is वाइज। wise. सैगेशियस का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? वाइज। क्लियर ऑल ऑफ यू? ये शायद आपने ऐड भी देखा होगा। ये देखो कैसे जा रहा है ये। कहाँ जा रहे हो? Sit down. तो दिमाग चला है ना उनका, उल्टा रिवर्स चला। तो आप याद कैसे रखोगे? साग खाने वाले लोग क्या होते हैं? सैगेशियस, वाइज। तो ऐसे 2 वीडियो और है स्टूडेंट, हम साथ में देख लेते हैं ताकि हम अपने मैटर को कवर अप करें। देयर इज अनदर वर्ड दैट इज क्वाक। क्वाक एक्चुअली में जो होते नहीं है मेडिकली इतने साउंड, मगर अपने आप को शो करते कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं मेडिकली। अ पर्सन हु डिसअडवांटेजली क्लेम्स टू हैव मेडिकल नॉलेज और स्किल्स। चिंता मत कर, ठीक कर देंगे तुम्हें डॉक्टर साहब। तो आपको पता है ये इस मूवी में डॉक्टर नहीं होता और सिर्फ प्रिटेंड करता है कि मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, राइट? Think and visualize. There are many quacks in Kuwait. राइट स्टूडेंट्स? कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसी में ही
हम लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक पार्ट और कवर कर लेते हैं. लुक अप हियर, यू मस्ट ऑल बी नोइंग दिस पार्ट अबेस्ट, शर्मिंदा होना. बोलिए मेरे साथ, अबेस्ट क्या मीनिंग होता है इसका? शर्मिंदा होना, Or ashamed. right? Embarrassed, ashamed. So there is one good example. He felt abased by his inability of speaking. Ash was abashed. Right? So we can recall such words. तो हम लोगों ने बहुत से वर्ड देखे, क्वाक और अबेस्ट, और अबेस्ट से अब हमने किस पर जोड़ दिया? ऐश को. Agree students? So this is the best way to learn your words, and still we have so many things. Students, actually there is no end of learning words. But as during my session, last session, I have given you certain spellings. आप सबको ध्यान होगा, कुछ spellings दी थी मैंने आपको, तो मैं आपको YouTube पे डाल देता हूँ. आप go through हो जाए ना उस spelling से, so that it would be easy for you to check all these spellings. जब मैंने आपसे cigarette, आपसे schizophrenia वगैरह की spellings पूछी थी, तो अब आप easily spellings को go through हो जाना. और I am putting it in your YouTube channel, so आप वहां से जोड़ कर सकते हो. And then coming on our last aspect, students, हमने क्यू कार्ड सीख लिया है. हम वर्ड लिखेंगे, पीछे एग्जांपल देंगे, अपनी पॉकेट में रखेंगे. मगर आप में से किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर जब इसको हम रखेंगे तो इसको यूज कब करना है? तो स्टूडेंट इसको यूज तब करना है when you are waiting for something, when we are waiting in a queue, when you are standing for waiting somebody, when you are in bus going somewhere, whenever you are free, just bring out, read your words and keep it in your pocket. Write as many words you can, as many, and just make a click how to learn those words. As I told you my first word during this session, I told you so many words over there, and there were all with particular examples I have given. So same thing, if you apply in your life and you learn your vocab, you can do a miracle, students. So मुझे उम्मीद है that today you must have learned more than I should say 300, 400, 500 words, and please do apply it in your life. And go through our YouTube channel. You will learn so many other things other than this vocabulary session. But I believe today you must have learned something different in your life. And this thing I want in all of you, that you should speak in a fluent manner. And this needs a good fluency in our personality. And this can only be possible if you work very hard and you go through these sessions again and again. So this session today, what we have done, don't make it enough or a limit to your life. You go through these sessions on YouTube again and see all the meanings again with your own register, write them again, jot them again, and make a prepare in a fair manner, and then cram it, learn it and apply it. You will see a miracle change in your personality because of your good vocab. So my best wishes are ever with you. Thank you.